अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यह हम लोग चिकन कुज़ीन पर पहुंच चुके थे क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग कुछ स्पेशल डाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने फ़ास्ट फूड छोड़ा हुआ था। और आज हस्बैंड की तरफ ड्यू था कि आज हम लोग पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, तो ये हम लोग चिकन कुज़ीन पर पहुंच चुके थे। और इनका जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, काफ़ी मज़े का पिज़्ज़ा होता है। तो यह हम लोग खाना खाकर आ चुके थे और ये नेक्स्ट डे हो चुका है। और यह मैं न्यूट्रिया फैक्टर की मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर की हुई थी जो कि बहुत अच्छी हैं। ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। और ये तकरीबन मैंने 6 माह से स्टार्ट की हुई, जिनके मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिले थे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ मैंने विटामिन्स ऑर्डर किए थे जो कि बहुत ही अच्छे हैं हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि ज़ाहिर हमें फूड से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि हमारी ख़ुराक इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर ये हमारी जितनी भी कमी होती है ये विटामिन पूरी करते हैं। प्लस आप सारा दिन एक्टिव रहते हो। प्लस ये मैंने कोलेजन और जेंसर की प्रोडक्ट भी ऑर्डर की थी, क्योंकि ये आपकी एजिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको आपकी स्किन, नेल्स और बालों को बहुत ही फ्रेश रखते हैं। तो यहाँ ये मैंने ऑर्डर भी आया हुआ था, मैंने सोचा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। From Daraz, and this is what it looks like. We already kind of tested it, but wait, there you go. I mean, honestly, for the price, this is really good quality. I don't know what else to say, but this is really good. Like, I wasn't expecting it to be this good, and I was expecting it to be a bit lightweight, but it is heavy, which is a good thing. And this is really good. Like, it's really smooth as well. So I'll give this 10 out of 10. Like, I was expecting it to be bad because it's kind of cheap, I'd say, but it's for, I think, 400 rupees or something, including the delivery and stuff. No, I think including the delivery becomes 500, but for the price, this is really good. Anyways, the next thing we got is, are these ankle socks. I really needed these because I lost all of my other socks, and I think this is a pair of 6 socks. 2 of them are gray, 2 of them are white, and 2 of them are black. So we're gonna see how the quality is. This is the first time I ordered from this particular company. Okay, this looks good. Oh, this is actually really good quality. It's really soft. Yes. Also like this. So I'll give this, how much would I give? I think I'll give this a 10 out of 10. Okay. So everything we got is really good. So आज हम coffee बनाएंगे, actually iced coffee. So I'm gonna show you guys how to make it. सबसे पहले हमें some shots of espresso चाहिए, coffee चाहिए. I just mixed instant coffee with some water. और अब हम इसको अपने jar में add करेंगे. So I added my coffee in the jar. Now we're gonna need some ice. We're actually gonna need a lot of ice. Okay, I think this is enough. This is enough, but I like to add a lot of ice, so we're gonna add some more. Okay, now we have added the ice. Now I'm gonna add some caramel syrup in it for the taste. Oh, I forgot to mention you can also add some sugar in it, but I prefer not to add it. I think this is okay. Now this is what I like to do. You get the cap, do this. You're gonna hold it like this, and then you're gonna start shaking. Beautiful smell. Yeah. Oh, yeah. Very good. It forms. I think so. It's a bit thick. Yeah, that's true. This is better than whisking it because whisking it takes a really long time, and this is so much easier. Look at this. And now we're gonna add our milk in this. I need a straw.
Okay, this is enough. Okay. And this is my coffee recipe. Yes. It's really good. Tastes really good. Yeah. Can I take it? और ये नेक्स्ट डे हो चुका था तो बटर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ था, मलाई वगैरह, तो मैंने सोचा चलें देसी घी बना लेती हूँ और फ्रिज भी खाली हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो इसको फ्रीज़र में रखा होता है, ज़ाहिर है नीचे ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा चलें इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ तकरीबन 2-3 घंटे की मेहनत से ये तैयार हो चुका था माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आया हुआ था और हमारे घर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है क्योंकि हम लोग रेगुलर ऑयल्स कम ऑयल में खाना बनाते हैं और फिर बाद में इसके 1 या 2 चम्मच अपने सालन के ऊपर डाल लेते हैं। तो इससे एक तो खाना भी काफ़ी मज़े का हो जाता है और काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ जी अब मैट्रेस आने वाला था तो इसको उठाया जा रहा था क्योंकि पुराने वाला मैट्रेस हमारा ख़राब हो चुका था तो इसलिए नया आने वाला था। तो यहाँ इसको उठाकर मुझे सफाई करनी थी तो क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि आप सारी सफाई कर लें और यह मैं सफाई कर चुकी थी और मैट्रेस भी आ चुका था और यहाँ अब हम लोग इसको असेंबल करेंगे। और ये उसी शाम को हम लोग सब बैठकर रात को गपशप लगा रहे थे और फ़ोन भी यूज़ कर रहे थे और यहाँ हम लोग जैसे ही बैठे तो अचानक से एक चूहिया आई तो सब ने देखकर चीखें मारना शुरू कर दी और फिर अब इसको पकड़ने की तैयारियां हो रही थी और सच में सबको इसने हिला कर रख दिया और इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा और फिर इसको मारा। तो यहाँ काफ़ी शोर शराबा भी चल रहा था और पकड़ा कम जा रहा था और चीखें ज़्यादा मारी जा रही थी और फिर फाइनली उसको काफ़ी मेहनत के बाद मेरे जेठ के बेटे ने पकड़ कर मार ही दिया था। तो फिर हमें भी सुकून आया क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आपके घर में हो तो काफ़ी टेंशन होती है कि कहीं ना कहीं से निकल आएगा जब तक आप इसको मार नहीं देते। और यहाँ लाइका के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और उससे नेक्स्ट डे ही हमारा यही प्रॉमिस था कि चलें आपको लेकर लाहौर जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लाहौर के लिए निकल चुके थे और हम 2 फैमिली मिलकर जा रही थी। मेरे इन लॉज वाले भी साथ में थे क्योंकि हम साल में एक दफ़ा इकट्ठे ज़रूर घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एम्पोरियम गए तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की और थोड़ा घूमे फिरे और बेसिक हम लोगों का यही प्रोग्राम था कि हम लोग मूवी के लिए जाएंगे, मूवी देखनी है। तो इसलिए हम लोग पहले एम्पोरियम में आए और यहाँ से कुछ शॉपिंग मुझे भी करनी थी तो मैंने यहाँ से कपड़े शपड़े ख़रीदे थे और फिर हम लोगों को कुछ खाना शाना हम लोगों ने खाया था। और यहाँ ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ भी शेयर किया हुआ है। ये KWC का बर्गर है जो कि बहुत ही मशहूर है। तो ये जब भी हम जाते हैं तो ये ज़रूर खा कर आते हैं। तो ये इनका बीफ बर्गर है जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े का है। तो ये हम लोगों ने खाना शाना खाया था और फिर इसके बाद हमें मूवी का टाइम हो रहा था तो हम लोग फिर मूवी के लिए निकल गए। और यहाँ हम लोग क्यू सिनेमा के पास पहुँच चुके थे क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश भी था और डर भी लग रहा था क्योंकि ये मोस्टली इनकी बुकिंग्स ऑनलाइन होती हैं और फुल होती हैं। तो यहाँ हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग वगैरह तो नहीं करवाई थी तो हमने कहा चले जाकर ही देखते हैं। तो जब यहाँ पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा रश था और सच में देखकर लग रहा था कि आज तो हमें नहीं सीट्स मिलने वाली। लेकिन हमने काफ़ी एफर्ट करने के बाद जब पहुँचे और जाकर रिसेप्शन पर पता किया तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं जगह मिली। फिर हम लोग वापस आ गए। फिर तो बच्चों का मूड ही ख़राब हो गया। फिर ज़ाहिर लाइका को काफ़ी था कि मैंने मूवी ही देखनी है तो फिर यही डिसाइड हुआ कि हम फोर्ट्रेस वाले सिनेमा में चले जाते हैं। लेकिन जब वहाँ भी गए तो वो भी फुल था तो सोचा कि चलें अब क्या कर सकते हैं, हर तरफ से कोशिश की है। हमसे गलती एक्चुअली ये होगी कि हमें चाहिए था कि एम्पोरियम वाले ही सिनेमे में देख लेनी चाहिए था। लेकिन इनको यही शौक़ था कि हमें
क्यों सिनेमा में मूवी देखनी है। तो फिर यहाँ भी थोड़ा घूमे फिरे और फिर ज़ाहिर है कि अब बच्चों ने जान थोड़ी छोड़नी थी। उन्होंने कहा कि चले ऐसा करते हैं कि आप हमें अब जॉयलैंड ही, ज़ाहिर है यहाँ आ चुके हैं तो हमें जॉयलैंड ही ले जाएं। तो यहाँ हम तो नहीं गए थे, ज़ाहिर है इतनी गर्मी थी, और दूसरा फिर बच्चे चले गए, हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहे। और फिर तकरीबन रात को हम लोग 12-1 बजे घर वापस आ चुके थे। और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन उनका जो मूड था मूवी का वो उनका शौक़ नहीं पूरा हो सका। बाकी चलें कोई नहीं, ऐसा चलता है। तो ये हमारी छत के नेक्स्ट डे के ही सीन थे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा चाँद था। तो मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी तो मैंने सोचा चलें ये आप लोगों के लिए मैं ऐड कर लेती हूँ क्लिप। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ नेक्स्ट डे मेरी जेठानी के नवासे वगैरह आए हुए थे और उनको छुट्टियाँ हो चुकी थी और उनको एक्चुअली बहुत ही शौक़ है ट्रेन देखने का। तो उन्होंने ज़िद की हुई थी कि चलें सब जाते हैं, मिलकर जाकर ट्रेन वगैरह देखते हैं। और उनको स्टेशन जाना बहुत अच्छा लगता है और वो मेरी तरफ भी आए, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को पता है हमारे घर साथ साथ हैं। तो बच्चों की मामा कहने लगी चले चाची चलते हैं, और बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं कि चाची को भी साथ लेकर जाना है। तो यहाँ हम लोग फिर पहुँच चुके थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आई थी स्टेशन, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे देखना, और बच्चों के साथ मिलकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बचपन याद आ गया जब हम लोग ट्रेन को देखकर बाय बाय करते थे। तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत सा ये स्टेशन था। और मेरी पिछली वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि आप लोगों के बहुत अच्छे ब्लॉग होते हैं और मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों के व्यूज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है, यानी कि इतने कम क्यों होते हैं। तो मेरी जान यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो अपनी 100% कोशिश करती हूँ, बाकी हर किसी का अपना नज़रिया है पसंद करने का या ना करने का। ये बाकी आप लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या देखना अच्छा लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है कभी कभी हम अपने हिसाब से वीडियोस बना रहे होते हैं लेकिन ऑडियंस कुछ और देखना चाह रही है। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कुछ देखना है या कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, और फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरह की अपनी वीडियोस बनाया करूँगी। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बाकी आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।